जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 28। युञ्जनेवं सदा आत्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। इस सुगम योगावस्था के द्वारा बहुत से साधकों ने संकल्प की संपत्ति छोड़कर मोक्ष के दर्शन किए हैं। जब मन आत्म सुख की संगति से पर ब्रह्म के अंदर जा पहुंचता है, तब वह उसे उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार पानी में घुला हुआ नमक पानी को नहीं छोड़ता, और मन भी उस मिलन से समरसत्व के मंदिर में संसार के साथ सुख की दिवाली मनाता रहता है। इस प्रकार साधक को अपने ही मूल स्वरूप की ओर चलते रहना चाहिए। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। जिसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त है, उसको तो यह अनंत असीम अचिंत्य आनंद प्राप्त है, जिसकी किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। ऐसा वह निर्तिश्य अक्षय एवं आत्यंतिक आनंद पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त पुरुष का अपना स्वरूप ही होता है। The yogin, always engaging the mind thus unto the feet of the Lord, freed from sins, easily enjoys the infinite bliss of contact with Brahman the Eternal. By yogic practices such as the withdrawal of the senses, concentration and meditation, sadhak loses attachment with the objects of the senses and comes into contact with the immortal self, Atman, within, and thus enjoys the infinite bliss of Brahman. When the flow of thoughts ceases, the mind also ends. Where the mind has ended, there the sadhak is awakened to the experience of the infinite nature of the self. Naturally, the sadhak, yogin, comes to the supreme bliss. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അദ്ധ്യായം 6 ശ്ലോകം 28. ലളിതമായ ഈ യോഗയിലൂടെ നിരവധി അന്വേഷകർ സ്വപ്നം കണ്ട സമ്പത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് മോക്ഷം നേടിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സ് സ്വയം ആനന്ദത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച ഉപ്പ് വെള്ളം വിട്ടു പോകാത്തതുപോലെ മനസ്സ് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഈ രീതിയിൽ അന്വേഷകൻ സ്വയം യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. പാപരഹിതനായ ഒരു യോഗിയുടെ ആത്മാവ് അങ്ങനെ നിരന്തരം ഈശ്വരനിൽ മുഴുകുകയും പരമാത്മാവിനെ നേടുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊന്നിനോടും താരതമ്യപ്പെടുത്താനാവാത്ത അനന്തവും അതിരറ്റതും അചിന്തനീയവുമായ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ നേടിയ ഒരാളുടെ സ്വഭാവം പരിധിയില്ലാത്തതും നാശമില്ലാത്തതും പരമവുമായ ആനന്ദമാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 6 श्लोक 28. योगाच्या या सोप्या अवस्थेतून अनेक साधकांनी संकल्पाचे धन सोडून मोक्ष मिळवलेला आहे. जेव्हा मन आत्मसुखाच्या सहवासात परमात्म्याच्या आत जाते,
तेव्हा ते जसे पाण्यात विरघळलेले मीठ पाणी सोडत नाही, तसेच ते पण त्याला सोडत नाही. आणि त्या संगमात मन देखील समरसत्वाच्या मंदिरात जगासोबत आनंदाची दिवाळी साजरी करत राहते. अशा प्रकारे साधकाने स्वतःच्या मूळ स्वरूपाकडे वाटचाल करत राहावे. पापमुक्त युगी अशा प्रकारे सतत आपला आत्मा देवामध्येच रमवतो आणि परमात्म्याच्या प्राप्तीच्या स्वरूपात आनंदाने अनंत असा आनंद अनुभवत राहतो. ज्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे तो या असीम, अमर्याद, अकल्पनीय आनंदाचा अनुभव घेतो, ज्याची तुलना इतर कोणत्याही गोष्टीशी करता येणार नाही. असा अमर्याद, अविनाशी आणि परम आनंद हा परमात्मा प्राप्त झालेल्या व्यक्तीचा स्वभावच असतो. जय गुरुदेव. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమసన్మాత్మ శ్రీ ఎస్పాజీ మహారాజ్ వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకం 28 యుంయేనేవం సదాత్మానం యోగి విగత కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శ మత్యంతం సుఖమస్నుతే. సుగమమైన ఈ యోగావస్థ ద్వారా ఎంతో మంది సాధకులు సంకల్ప సంపత్తిని విడిచి మోక్ష దర్శనం చేశారు. మనసు ఆత్మసుఖ సాంగత్యంచే పరబ్రహ్మయందు ప్రవేశించినప్పుడు అది దాని నీటిలో కలిసిపోయిన ఉప్పు వలె ఆ నీటిని ఏ విధంగా విడిచిపెట్టదో ఆ విధంగా విడిచిపెట్టదు. మరియు మనసు కూడా కలయికలో సమరసత్వ మందిరంలో ప్రపంచంతో పాటు ఆనంద సుఖ పూర్వక దీపావళి జరుపుకుంటుంది. ఈ ప్రకారంగా సాధకుడు తన మూల స్వరూపం వైపు పయనించవలసి ఉన్నది. ఈ విధంగా పాపరహితుడైన యోగి నిరంతరం ఆత్మను పరమాత్మలో లీనం చేస్తూ సుఖముగా పరబ్రహ్మ పరమాత్మ ప్రాప్తి అనే అనంత ఆనందమును అనుభవం పొందుతూ ఉంటాడు. ఎవరికి ఆత్మ సాక్షాత్కార ప్రాప్తి కలిగిందో, ఎవరికి అనంతమైన హద్దులు లేని అచింత్యమైన ఆనందం లభించిందో ఆ ఆనందాన్ని ఇతరమైన దేనితోనూ పోల్చలేము. ఈ విధంగా నిరతిశయమైన, అక్షయమైన, అంతము లేని ఆనంద స్వరూపుడైన పరబ్రహ్మ పరమాత్మను పొందిన ఆ పురుషుడు తన స్వరూపమే అవుతాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసాద్. युञ्जनेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते. आई सुगम योगावस्था से कतेको साधक सब संकल्प के संपैत त्याग क मोक्ष के दर्शन क चुकल छथि. जखन मोन आत्म सुख के संगत से पर ब्रह्म दिस पहुँच जाइत अछि तखन ओ ओकरा ओहि तरहे नहीं छोड़ैत अछि जेना पानि में मिलाओल गेल नोन पानि के नहीं छोड़ैत अछि. आ मोनो ओहि मिलन में समरसत्व के मंदिर में संसार संगे सुख के दिवाली मनबैत रहैत अछि. एहि प्रकार साधक के सदखन अपने मूल स्वरूप दिस बढ़ैत रहबाक चाही. पाप रहित योगी एहि प्रकार सदखन आत्मा के परमात्मा में लगबैत सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा के प्राप्ति रूप अनंत आनंद के अनुभव करैत रहैत अछि. जिनका आत्म साक्षात्कार प्राप्त भ गेल छनि हुनका तऽ एहन अनंत असीम आ अचिंत्य आनंद प्राप्त होइत छनि जकर परतर आर कोनो वस्तु संगे केनाइ संभवे नहि अछि. एहन निरतिशय, अक्षय आ आत्यंतिक आनंद पर ब्रह्म परमात्मा के प्राप्त पुरुष के अपन स्वरूपे बनि जाइत अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.